नमस्ते बच्चों। लीप फॉर वर्ड से मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्वरूपा। और हर सप्ताह हम लेकर आते हैं खास आप सभी बच्चों के लिए मजेदार कहानियां और कुछ नए शब्दों की श्रृंखला। तो फिर एक बार मैं आप सभी के साथ जुड़ रही हूं आज के कहानी सत्र में। बच्चों, आज आपके साथ का हमारा ये 17वां कहानी सत्र है। पिछले सत्र में हमने दशहरा, द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल और द काइंडनेस ऑफ अ लिटिल गर्ल ये 2 कहानियां देखी और उन कहानियों में उपयोग किए गए कठिन शब्दों को और उनके अर्थों को भी समझा। साथ ही दिवाली संबंधित शब्दों को देखा और उनके अर्थ भी समझे। आज के सत्र में हम कुछ थीम बेस्ड शब्द देखेंगे। हम लाइब्रेरी की किताब से 2 दिलचस्प कहानियां सुनेंगे और उन कहानियों पर आधारित कुछ प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइब्रेरी की किताब से। और आज की हमारी पहली कहानी है नेवर गिव अप। देयर वॉज अ गर्ल, हर नेम वॉज प्रिया. She was a calm girl, but she got scared easily. She was timid and used to get offended easily by the opinions of people around her. She worked very hard, but the negative mindset of the people affected her. People always suggested that nothing is possible in this world if you are not good at science and social studies. And she was good only at maths. People used to say bad things about her, and people used to make fun of her. Because of all this negativity, she started failing in the exam, and her moral went down. One fine day, her father called her and said, "Dear child, why are you not able to secure good marks?" Priya shared that she left studying as she found no more happiness in her studies, and also left her favorite subject, as people in her surrounding usually say that other subjects are more important. I am badly affected by the negative comments, she said. Her father asked, why you are being bothered by people's statements? You must give your 100% and work hard no matter how hard it is. Try to study other subjects and get essential marks. She understood what her father was trying to say. She decided to focus on maths, not listen to what other people were saying, and give equal importance to other subjects. Now, each semester, she started improving no matter how few marks she got. She used to carry on and never give up. She stood first in the class in maths, and the teacher was delighted. Moral: one must never give up. The real strength lies within a person. अब आइए देखें कि हिंदी में इस कहानी का मतलब क्या है। नेवर गिव अप यानी कि कभी हार मत मानो। There was a girl, her name was Priya. She was a calm girl, but she got scared easily. एक प्रिया नाम की लड़की थी। वो एक शांत लड़की थी, लेकिन वो आसानी से डर जाती थी। She was timid and used to get offended easily by the opinions of the people around her. वो डरपोक थी और अपने आसपास के लोगों के राय से जल्दी आहत हो जाती थी। She worked very hard, but the negative mindset of the people affected her. उसने बहुत मेहनत की, लेकिन लोगों की नकारात्मक मानसिकता का उस पर असर होता था। People always suggested that nothing is possible in this world if you are not good at science and social studies. लोग हमेशा सुझाव देते थे कि यदि तुम विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में अच्छे नहीं हो तो इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। As she was only good at maths, क्योंकि वो केवल गणित में ही अच्छी थी। People used to say bad things about her, and people used to make fun of her. Because of all this negativity, she started failing in the exam, and her morale went down. लोग उसके बारे में बुरी बातें कहते थे और लोग उसका मजाक बनाते थे। इस सारी नकारात्मकता के कारण वो परीक्षा में असफल होने लगी और उसका मनोबल गिरता गया। One fine day, her father called her and said, "Dear child, why are you not able to secure good marks?" एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाया और कहा, बच्चे, तुम अच्छे अंक क्यों नहीं ले पा रही हो? Priya shared that she left studying as she found no more happiness in her studies and also left her favorite subject, as people in her surrounding usually say that other subjects are more important. Priya ने बताया कि उसने पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि उसे पढ़ाई में कोई खुशी नहीं मिलती
और उसने अपना पसंदीदा विषय भी छोड़ दिया, क्योंकि उसके आसपास के लोग आमतौर पर ये कहते हैं कि अन्य विषय अधिक महत्वपूर्ण है। आई एम बैडली अफेक्टेड बाय निगेटिव कमेंट्स। मैं नकारात्मक टिप्पणियों से बहुत बुरी तरह प्रभावित हूँ। हर फादर आस्क्ड व्हाई यू आर बीइंग बॉदर्ड बाय पीपल्स स्टेटमेंट। उसके पिता ने पूछा कि तुम लोगों की बातों से परेशान क्यों हो रही हो। You must give your 100% and work hard no matter how hard it is. तुम्हें अपना 100% देना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी, चाहे ये कितना भी कठिन क्यों ना हो। Try to study other subjects and get essential mark. अन्य विषयों का अध्ययन करने और आवश्यक अंक प्राप्त करने का प्रयास करो। She understood what her father was trying to say. She decided to focus on maths, not listen to what other people were saying and gave equal importance to other subject. वो समझ गई कि उसके पिता क्या कहना चाह रहे थे। उसने गणित पर ध्यान केंद्रित करके दूसरे लोग क्या कर रहे हैं या फिर क्या कह रहे हैं ये ना सुनने और अन्य विषयों को भी समान महत्व देने का निर्णय लिया। Now each semester she started improving, no matter how few marks she got. अब हर सेमेस्टर में उसमें सुधार होने लगा, भले ही उसे कितने भी कम अंक मिले। She used to carry on and never give up. वो आगे बढ़ती रहती थी और कभी हार नहीं मानती थी। She stood first in class in maths and the teacher was delighted. वो गणित में कक्षा में प्रथम आ गई और शिक्षक बहुत प्रसन्न हुए। Moral: One must never give up. The real strength lies within a person. यानी कि व्यक्ति को कभी हार नहीं माननी चाहिए, असली ताकत इंसान के अंदर होती है। बच्चों, अब हम इस कहानी में से कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ देखेंगे। पहला शब्द है इक्वल, EQUAL, इक्वल यानी कि समान। अगला शब्द है मोराल, MORALE, मोराल यानी कि मनोबल। अगला शब्द है निगेटिव, NEGATIVE, निगेटिव यानी कि नकारात्मक। अगला शब्द है नेवर, NEVER, नेवर यानी कि कभी नहीं। अगला शब्द है सिक्योर, SECURE, सिक्योर यानी कि सुरक्षित। अगला शब्द है सेमेस्टर, SEMESTER, सेमेस्टर यानी कि सत्र। अगला शब्द है सराउंडिंग्स, SURROUNDINGS, सराउंडिंग्स यानी कि परिवेश। अगला शब्द है साइंस, SCIENCE, साइंस यानी कि विज्ञान। बच्चों, जब आप इन शब्दों का सही उच्चारण और अर्थ जान ही गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इस कहानी पर आधारित कुछ सवाल। What subject was Priya good at? And the options are A. Science, B. Social Studies, or C. Maths. Next question. How did Priya feel about the negative comments from others? A. Offended, B. Motivated, or C. Indifferent. Third question. What did Priya's father encourage her to do? A. Ignore her studies, B. Give her best effort and work hard, or C. Focus only on maths. Next question. What was the outcome of Priya's determination? A. She failed every exam. B. She gave up studying entirely. Or C. She stood first in her class in maths. And last question, what is the moral of the story? A. You should only focus on subjects you are good at. B. You must never give up. The real strength lies within a person. Or C. The best to listen to others' opinions about your studies. अरे वाह, आपने तो सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया। चलिए अगले भाग पर चलते हैं। अब हम कुछ थीम बेस्ड शब्द देखेंगे और आज की हमारी थीम है प्रोफेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला शब्द है प्रोफेसर, PROFESSOR। प्रोफेसर का मतलब है प्राध्यापक।
जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उन्हें अंग्रेजी में प्रोफेसर ऐसा कहते हैं। अगला शब्द है साइंटिस्ट, SCIENTIST। ये तो आप सभी को पता है, साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक। अगला शब्द है इंजीनियर, ENGINEER। इंजीनियर का मतलब है अभियंता। बच्चों, आप सभी लोग बताओ, आप में से किन किन लोगों को अभियंता यानी कि इंजीनियर बनना है? अगला शब्द है आर्किटेक्ट, ARCHITECT। आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकार। वास्तुकार वे पेशेवर होते हैं जो भवनों या फिर घरों और अन्य संरचनाओं की योजना, डिजाइन और निर्माण में विशेषता रखते हैं। अगला शब्द है लॉयर, LAWYER। लॉयर का मतलब है वकील। वकील वो होते हैं जो कानून की जानकारी के आधार पर अपने क्लाइंट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला शब्द है आर्टिस्ट, ARTIST। आर्टिस्ट मतलब कलाकार। कलाकार वो व्यक्ति होते हैं जो अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य, लेखन, नाटक इन कलाओं में अभिव्यक्ति करते हैं। अगला शब्द है राइटर, WRITER। राइटर मतलब लेखक। अगला शब्द है पायलट, PILOT। पायलट। पायलट का अर्थ है विमान चालक। पायलट वो व्यक्ति होते हैं जो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर जैसे विमानों को उड़ाने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। बच्चों, आपने कई बार हवाई जहाज तो देखा होगा ना, उसको चलाते कौन है? जी हाँ, पायलट। अगला शब्द है मैकेनिक, MECHANIC। मैकेनिक का मतलब है मिस्त्री। अगला शब्द है प्लम्बर, PLUMBER। प्लम्बर मतलब नलकार। प्लम्बर वो व्यक्ति होते हैं जो पानी, सीवेज और पाइपलाइन सिस्टम से संबंधित समस्याओं की मरम्मत, स्थापना और रखरखाव का काम करते हैं। अगला शब्द है फायर फाइटर, FIRE फायर, FIGHTER फाइटर। फायर फाइटर का मतलब है अग्निशामक। अग्निशामक वो व्यक्ति होते हैं जो आग बुझाने, लोगों को बचाने और आपातकालीन स्थितियों में सहायता करने का कार्य करते हैं। अगला शब्द है डेंटिस्ट, DENTIST। डेंटिस्ट का अर्थ है दंत चिकित्सक। दंत चिकित्सक वे स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं जो दांतों, मसूड़ों और मुख्य स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का इलाज करते हैं। अगला शब्द है थेरेपिस्ट, THREAPIST। थेरेपिस्ट का मतलब है चिकित्सक। चिकित्सक वो होते हैं जो मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का इलाज करते हैं। अगला शब्द है फार्मासिस्ट, PHARMACIST। फार्मासिस्ट वो पेशेवर होते हैं जो दवाइयों के प्रबंधन, वितरण और उपयोग में विशेष तज्ञता रखते हैं। अगला शब्द है वेटेरिनेरियन, यानी कि पशु चिकित्सक। जानवरों की चिकित्सा, देखभाल और स्वास्थ्य को सुनिश्चित रखने के लिए ये प्रशिक्षित होते हैं। अगला शब्द है कारपेंटर, CARPENTER। कारपेंटर यानी कि बढ़ई वो होते हैं जो लकड़ी और अन्य निर्माण सामग्रियों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के उत्पादों और संरचनाओं को बनाते हैं। अगला शब्द है म्यूजिशियन, MUSICIAN। म्यूजिशियन यानी कि संगीतकार। संगीतकार वो व्यक्ति होते हैं जो संगीत की रचना, प्रदर्शन या रिकॉर्डिंग करते हैं। अगला शब्द है जर्नलिस्ट, JOURNALIST। जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार वो पेशेवर होते हैं जो समाचार, लेख और अन्य सूचनाएं एकत्रित, संपादित और प्रकाशित करते हैं। अगला शब्द है सर्जन, SURGEON। सर्जन यानी कि शल्य चिकित्सक। शल्य चिकित्सक वे चिकित्सा विशेषज्ञ होते हैं जो शल्य चिकित्सा, सर्जरी के माध्यम से रोगों, चोटों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करते हैं। और हमारा आखिरी शब्द है लाइब्रेरियन, LIBRARIAN। लाइब्रेरियन यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष वो होते हैं जो पुस्तकालयों का प्रबंधन और संचालन करते हैं। बच्चों, इन शब्दों का सही उच्चारण और अर्थ तो हमने जान लिया। चलिए लाइब्रेरी की किताब से एक और कहानी देखते हैं। और आज की कहानी है ब्रेवरी ऑफ अ चाइल्ड। देयर वॉज अ विलेज नेम्ड जोधपुर। अ रॉबरी occurred in the same town, and the robber looted most houses which had lots of gold, currency and food. The police started investigating but could not find the real culprit. One day, those culprits went to the market to sell the stolen material. The police identified them and surrounded them to catch them.
Instead of being afraid and surrendering, they started running, trying their best to escape. A little boy observed all of those and wanted to help the police, but did not want to get in trouble. He and his friends were playing with the marbles. He collected those marbles and spilled them on the floor. While running, the culprits did not see the marbles on the floor, stepped on them, and fell. With the help of the children, the police were able to capture them and took them to the police station and inquired why they had done the robbery. They told the police that they wanted to have a big townhouse and quickly become rich. The robbers were put in jail for 10 years. The little children were appreciated for their bravery. They were awarded for their bravery on Children's Day. And the villagers also learned a lesson to keep their houses protected by closing all doors and windows to avoid getting robbed in future. Moral: Bad acts always bring trouble. अब आइए देखें हिंदी में इसका मतलब क्या है। ब्रेवरी ऑफ अ चाइल्ड यानी कि बच्चे की बहादुरी। There was a village named Jodhpur. A robbery occurred in the same village, and the robber looted most houses which had lots of gold, currency and food. यानी कि जोधपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में एक डकैती हुई और डाकू ने अधिकांश घरों को लूट लिया, जिनमें बहुत सारा सोना, पैसे और भोजन था। The police started investigating but could not find the real culprit. One day, those culprits went to the market to sell the stolen material. पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन असली अपराधी का पता नहीं चल सका। एक दिन वे अपराधी चोरी का माल बेचने के लिए बाजार गए थे। The police identified them and surrounded them to catch them. Instead of being afraid and surrendering, they started running, trying their best to escape. पुलिस ने उनकी पहचान कर ली और उन्हें पकड़ने के लिए उन्हें घेर लिया। डरने और आत्मसमर्पण करने के बजाय वे भागने की पूरी कोशिश करते हुए भागने लगे। A little boy observed all of those and wanted to help the police, but did not want to get in trouble. एक छोटे लड़के ने उन सभी को देखा और वो पुलिस की मदद करना चाहता था, किंतु परेशानी में भी नहीं पड़ना चाहता था। He and his friends were playing with marbles. He collected those marbles and spilled them on the floor. वो और उसके दोस्त कंचों से खेल रहे थे। उसने उन कंचों को इकट्ठा किया और फर्श पर गिरा दिया। While running, the culprits did not see the marbles on the floor, stepped on them and fell. भागते समय अपराधी फर्श पर लगे कंचों को नहीं देख सके और उन पर पैर रखकर गिर पड़े। With the help of the children, the police were able to capture them and took them to the police station and inquired why they had done the robbery. बच्चों की मदद से पुलिस उन्हें पकड़ने में सफल रहे और थाने ले जाकर पूछताछ की कि उन्होंने डकैती क्यों की। They told police that they wanted to have a big townhouse and quickly become rich. उन्होंने पुलिस को बताया कि वो एक बड़ा टाउन हाउस बनाना चाहते थे और वो जल्दी से अमीर बनना चाहते थे। The robbers were put in jail for 10 years. लुटेरों को 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। The little children were appreciated for their bravery. They were awarded for bravery on Children's Day, and the villagers also learned a lesson to keep their houses protected by closing all doors and windows to avoid getting robbed in future. छोटे बच्चों को उनकी बहादुरी के लिए सराहा गया, उन्हें बाल दिवस पर बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया और ग्रामीणों ने भविष्य में लूट से बचने के लिए सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करने, अपने घरों को सुरक्षित रखने का सबक भी सीखा। मॉरल: बैड एक्ट ऑलवेज ब्रिंग ट्रबल, यानी कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको मजा आया? तो चलिए इस कहानी में से कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है अवॉइड, AVOID, अवॉइड यानी कि टालना। अगला शब्द है ब्रेवरी, BRAVERY, ब्रेवरी यानी कि बहादुरी। अगला शब्द है कल्प्रिट, CULPRIT, कल्प्रिट यानी कि अपराधी। अगला शब्द है करेंसी, CURRENCY, यानी कि मुद्रा। अगला शब्द है इंक्वायर्ड, INQUIRED, इंक्वायर्ड यानी कि पूछताछ। अगला शब्द है लेसन,
LESSON लेसन यानी कि पाठ। अगला शब्द है मार्बल्स, MARBLES मार्बल्स यानी कि कंचे, लड़कों के खेलने की गोली। अगला शब्द है मार्केट, MARKET मार्केट यानी कि बाजार। अगला शब्द है क्विकली, QUICKLY क्विकली यानी कि जल्दी से। अगला शब्द है रॉबर, ROBBER रॉबर यानी कि डाकू। अगला शब्द है रॉबरी, ROBBERY रॉबरी यानी कि चोरी। अगला शब्द है स्टोलन, STOLEN स्टोलन यानी कि चुराया हुआ। अगला शब्द है ट्रबल, TRUBLE ट्रबल यानी कि मुश्किल। बच्चों, जब आप इन शब्दों का सही उच्चारण और अर्थ जान ही गए हैं, तो आइए इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न देखें। और हमारा पहला सवाल है, What did the robbers steal from houses in Jodhpur? A. Gold, currency and food. B. Clothes and toys. Or C. Furniture and electronics. Next question. How did the little boy help the police? A. He called them on the phone. B. He spilled marbles on the floor. Or C. He chased the robbers with a stick. Next question. What happened to robbers when they stepped on the marbles? And the options are A. They managed to escape. B. They ran away without noticing. Or C. They fell down and were captured. Fourth question. What was the reason the robbers gave for committing the robbery? A. They wanted to buy food. B. They wanted to have a big townhouse and become rich. Or C. They needed money for a trip. Last question. What lesson did the villagers learn after the incident? A. To keep their houses protected by closing doors and windows. B. To trust everyone in the village. Or C. To leave their houses unlocked for safety. अरे वाह, आपने सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया है। चलिए अगले भाग पर चलते हैं। आज हमने थीम बेस्ड शब्दों को देखा और लाइब्रेरी की किताब से 2 नई कहानियां पढ़ी और आपने इन कहानियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए। तो दोस्तों, आपको आज का यह सेशन कैसा लगा? क्या आपको यह पसंद आया? अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को आपके मित्रों के साथ साझा करना भी ना भूलें। आज के लिए हमारा ये सत्र यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।